السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج کیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا جو چینل وہ بڑا پروموٹ ہو گیا ہے، 2 4 5 ہزار میرے بن گئے ہیں. میری خیر بہت کم لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں. کوئی نہیں، میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ میں نالج اسپریڈ کروں اور خود بھی اس پہ گریپ کروں. تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے انگلش پہ. نیب تحصیلدار پیپر جو آ رہا ہے انگلش کا، اس کا سلیبس ہے. اس کی جو بیسک چیزیں ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا. کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے واٹس ایپ پہ بھی اور ان باکس میں بھی، میرے گروپ پہ بھی، کہ بھائی یہ جو نیب تحصیلدار ہے اس کا انگلش کا سلیبس کیا ہے. تو اس کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے. یہ اس کا پہلا پارٹ ہے. اس کے 5 سے 7 پارٹس آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہم کور کر لیں گے. آپ اتنے قابل ہو جاؤ گے کہ انشاءاللہ آپ 65 مارکس آپ سیکیور کر سکتے ہو نیب تحصیلدار پیپرز میں. اور یہاں پہ ایک بات مائنڈ میں رکھیے گا، نیب تحصیلدار کے پیپرز میں آپ کو محنت کر کے جانی ہے، بٹ جو آتا ہو ایگزیکٹ وہ آپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ اوپن میرٹ پہ نہیں آ رہے ہو. آپ کا پورے پنجاب کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، آپ کا اپنے ڈویژن کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے. اس بات کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ لاجیکل چیز ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سلیبس جو ہے، جیسے جیسے میں سلیبس بتاؤں گا میں ساتھ ساتھ اس کو کور بھی کراؤں گا. سلیبس کافی ہے، لیکن جو ابھی ویڈیو میں آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں صرف ہم وہی کریں گے. اور اس سے جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں بھی سلیبس کے اکارڈنگ ہی کریں گے. یہ جو ویڈیو ہے یہ اس کی سیریل 4 سے 5 یا 7 8 تک جائے گی انشاءاللہ. اس میں نیب تحصیلدار کا پورا سلیبس ہم کور کریں گے، ایکسیپٹ آف ٹینسز، ایکٹیو وائز، پیسو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ. اگر وہ بھی آپ کو سیکھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں. انشاءاللہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. ٹائم نکال کے میں ٹینسز بھی کروا دوں گا، ایکٹیو وائز، پیسو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی کروا دوں گا. چلیں جی، نیب تحصیلدار جو ہے اس کے پیپر جو انگلش کا ہے اس کا سلیبس کیا ہے. ٹینسز ہیں، یہ ایز اٹ ویسے ہی میں نے لکھا ہے جیسے پی پی ایس سی والوں نے بتایا ہے کہ یہ سلیبس ہے، اسی حساب سے ہم چلیں گے انشاءاللہ. ٹینسز ہیں، اس میں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. اس پہ آپ کی گریپ ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ پیپر دینے جاتے ہو تو ٹینسز میں سے کافی سارے ٹینسز آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا فار ایگزامپل پریزنٹ ٹینس کا ہے کہ آئی ایٹ فوڈ. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آئی ایٹ فوڈ، سوری آئی ڈو ناٹ ایٹ فوڈ، آئی ڈو ناٹ ایٹ فوڈ. تو ڈو کی جگہ ڈیڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یا ڈو کی جگہ وہاں پہ وڈ آ جائے گا، مین ٹو سے. تو جس بندے کی گرپ ہوگی ٹینسز پہ وہ ایزیلی اس کو کمپلیشن کر لے گا سینٹینس کو، بنا کوئی سوچے بنا کچھ کیے. 1 منٹ میں اس کو کلک کرے گا اور وہ کر لے گا. وربس، چلیں ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وربس کی طرف آتے ہیں. Words of syntax, those words used to explain the action in any sentence and have to convey meaningful message to receiver. وہ کہتا ہے words کیا ہے؟ words وہ چیز ہوتا ہے جو سینٹینس کو بناتا ہے. سینٹینس کے جو ایکشن ہوتا ہے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کو ہم ورب کہتے ہیں. جیسے کہ نیچے ایگزامپل ہے، آئی رائٹ اے لیٹر، میں لیٹر لکھتا ہوں، میں خط لکھتا ہوں. آئی پلے پولو، میں پولو کھیلتا ہوں. گرل پلک فلاور، گرل جو ہے پھول توڑتی ہے. تو جو بھی ورب جو ہے آئے گا وہ ہمیشہ ایکشن ہوگا، وہ سینٹینس کو ڈسکرائب کرے گا تاکہ ریسیور کو بات سمجھ میں آئے، نہ سمجھ میں آئے. نیکسٹ ہماری جو سلائیڈ ہے وہ ہے کنجکشن. دس از ریئلی امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ کنجکشنز پرپوزیشن سے ملتی جلتی چیز ہے. اس پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے. اس پہ 3 سب پارٹس ہیں، سب اس کی برانچز ہیں، میں نے ڈسکس کی ہیں تینوں ہی. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، دھیان سے سنیے گا. ڈیفینیشن آف کنجکشنز، اٹ مینس اے ورڈ یوزڈ ٹو کنیکٹ سینٹینس اور کوآرڈینیٹ دا ورڈ ان سیم کلاؤز. ایک ہی سینٹینس میں رہتے ہوئے 2 حصوں کو جوڑنے کا جو کام کرتا ہے وہ کنجکشن کرتا ہے. ایک سینٹینس میں 2 ڈفرنٹ پارٹ کو جوائنٹ کرتا ہے، جوڑتا ہے، وہ کنجکشن کہلاتا ہے. ایگزامپل دی ہوئی ہے بٹ ایک کنجکشن ہے. آئی ایم ان ہری بٹ مائی کار از ناٹ اسٹارٹنگ، میں جلدی میں ہوں لیکن میری گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی. دوسرا ہے بیکوز، کیونکہ آئی ہیو ٹو گو ہوم بیکوز رین may start. وہ کہتا ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں کیونکہ بارش ہو سکتی ہے. اچھا، اس کی جو ایگزامپلز ہیں پرووائڈیڈ ہے، جسٹ ایز ہے. اگر آپ کو اس کی ساری ایگزامپلز چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتا دیں، میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا پی ڈی ایف میں. کائنڈز آف کنجکشنز، اس کی 2 اقسام ہے. کنجکشن ہے، ایک کوآرڈینیٹنگ کنجکشن، ایک سب آرڈینیٹنگ کنجکشن ہے. یہ جو ہے یہ ہم پڑھیں کائنڈ آف
सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एग्जांपल फैन बॉय, आपने रट्टा मारना है इसको, मैं कह रहा हूँ रट्टा मारो, फैन बॉय, फैन से एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और वाई से येट, ये आते हैं कंजक्शन में। इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फैन बॉय ये कोऑर्डिनेट मतलब होता है कोऑपरेट करना, किसी चीज को रास्ता देना, किसी चीज को मतलब हेल्प करना या लीवरेज देना। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, कोऑर्डिनेट पैदा करता है सेंटेंस में। तो ये फैन बॉय आप माइंड में रखिएगा। और सूटेबल सेंटेंसेस में ये ना हो कि आप हर जगह यही लगा दें, अपनी अकल से थोड़ा देखना, थोड़ा स्टडी करके जाना है, तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के सेंटेंसेस बिल्कुल आते हैं बीपीएससी में, जिन्होंने पढ़ी होती है वो कर लेते हैं। Correlative conjunctions, a pair of words used in sentence to convey meaningful message or a complete message, the pair of words working together। इसमें वो कहता है कि एक मजमुआ है दो अल्फाज का जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसके जो मैसेज को आगे पहुंचाता है एक मीनिंगफुल मतलब में, तो वहां पे ये दोनों यूज होते हैं, ये एक नहीं होता। कोरिलेटिव कंजक्शन कभी भी एक नहीं होता, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। द पार्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन कितने होते हैं, हाउ मेनी पार्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन, तो 2 होते हैं। एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल करते हैं, बोथ एंड, ये एग्जांपल है बोथ एंड, उसको सेंटेंस में यूज किया। आई लाइक बोथ क्रिकेट एंड जिम, मैं जिम भी पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट भी पसंद करता हूँ। नेदर नॉर हिज ब्रदर स्पीक नेदर इंग्लिश नॉर उर्दू, वो कहता है इसका भाई ना उर्दू बोल सकता है ना इंग्लिश बोल सकता है। एदर और, वो कहता है यू एदर लेयर स्विमिंग, या तुम स्विमिंग सीख लो, और ड्राइविंग या फिर ड्राइविंग, या इन दोनों से कोई एक चीज। आगे इसकी एग्जांपल है नॉट ओनली बट आल्सो फेदर और सच दैट नो सूनर देन सेक्रेटली हार्डली व्हेन वुड रेदर देन एस। ये सिर्फ जो है ना कोरिलेटिव कंजक्शन, उसकी सारी ये सारी कंप्लीट जो एग्जांपल्स है, इससे आगे एग्जांपल्स नहीं है, इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये थर्ड काइंड है, थर्ड किस्म है, तीसरी जो इसकी किस्म है वो हम डिस्कस करते हैं। दिस वर्ड लिंक टू अ डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जांपल, वो कहता है कि इसका जो एक लिंक करता है एक डिपेंडेंट क्लॉज से टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इस पे सेंटेंस का जुमले के 2 हिस्से होते हैं, एक इस पे डिपेंड कर रहा होता है लेकिन दूसरा इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। उसकी एग्जांपल्स हैं, इवन थो that day was hot, वो उस दिन बहुत गर्मी थी, hot too, but we did enjoy a lot, लेकिन हमने बहुत ज्यादा enjoy किया। even किसको डिपेंडेंट कर रहा है, hot to तक, ठीक है, आगे से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। while ये भी इसकी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन की एक एग्जांपल है। while I was leaving office when she was entering, मैं ऑफिस छोड़ रहा था और वो दफ्तर, मैं छोड़ रहा था और वो दफ्तर आ रही थी। हिल स्टेशन वॉज अमेजिंग वेयर एज ट्रेवल एज बोर्ड, ये भी उसकी एग्जाम्पल है। वो कहता है हिल स्टेशन में हमने बहुत इंजॉय किया, वेयर एज ट्रेवल वॉज बोर्ड, लेकिन हमारा जो सफर था वो इतना मजे का नहीं था। मोर एग्जाम्पल, इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल है, ये दी हुई हैं। इसके अलावा भी एग्जाम्पल अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ में दे दूंगा। पंक्चुएशन, डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन, हाँ ये बड़ा कोई टेक्निकल चीज़ है, इसको आप बड़े गौर से पढ़िएगा, देखिएगा, बल्कि 2-4 दफ़ा पढ़ के जाइएगा, इंशाल्लाह इतना टफ नहीं है, लेकिन 2-4 नंबर का ये आता है। Definite Punjabi is used to understand the meaning of any message and used to more elaborate the document's purpose। वो कहता है कि जो definition of punctuation, ये कहता है कि जो punctuation है उससे आप फिक्रे की नौयत देख सकते हैं, उसको मजीद elaboration हो सकती है, और डॉक्यूमेंट्स का पर्पस जो है वो आपके समझ आ सकता है जो डॉक्यूमेंट्स में होता है। फुल स्टॉप, कहता है फुल स्टॉप क्या है, मोस्टली यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जो फुल स्टॉप होता है हमेशा एंड पे लगता है, जहाँ पे फिक्रा खत्म हो जाता है। आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, जैसे मैंने खाना खा लिया, एग्जाम्पल मौजूद है नीचे देख सकते हैं आप। कॉमा यूज ऑफ्टन यूज फॉर सेपरेट डिफरेंट आइडियाज इन अ फ्रेज, वो कहता है एक फिक्रे में डिफरेंट आइडियाज को अलहदा करने को कॉमा यूज करते हैं, उसके लिए हम कॉमा। आई थिंकिंग टू परचेज सॉक्स, स्वेटर एंड गॉगल्स, मैं सोच रहा हूँ खरीदने के लिए जुराबें, स्वेटर एंड चश्मा। अच्छा, तीसरी किस्म है क्वेश्चन मार्क, इट इज यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस एट द एंड इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप। वो कहता है क्वेश्चन मार्क कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क हमेशा वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब आप फिक्रा में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं। उसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, आप देख सकते हैं। डू यू हैव पार्टी पास फॉर एंटर इनटू हॉल, वो कहता है आपके पास पार्टी पास है इस हॉल में इंटर होने के लिए। अच्छा, डी एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क में ना होता है इट इज यूज फॉर शोइंग इमोशन एंड फीलिंग इंस्टेंट, जब आप किसी सेंटेंस में अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहते हैं तो आप
एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। एल्स वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। जैसे सेमीफाइनल में शहनशाह अफरीदी को 3 छक्के पड़ गए, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन थी। एनी हाउ, मूव फॉरवर्ड। Punctuation, quotation mark. It is used to add quotation or highlight some specific thing in sentence. वो कहता है अगर आप कोटेशन देते हैं, कोई किसी बंदे की कोई यूनिवर्स से बात करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो फिक्रे में आप लिखेंगे, या कोई चीज़ आप डिफरेंट थिंग आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको फिक्रे से डिफरेंट करके लिखना चाहते हैं ताकि वो पढ़ने वाले को समझ आए, ठीक है, तो उसमें आप कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ बर्ड्स, आई लाइक पीकॉक वेरी मच। हमारे घर में बहुत सारे परिंदे, लेकिन मुझे मोर पसंद है। पंक्चुएशन, एपोस्ट्रॉफ यूज होता है टू शो पोजेसिव और सिंगुलर नाउन। ये हमेशा वहां पे यूज होता है जहां पे आप किसी चीज को किसी मलकियत पे जाहिर कर रहे होते हैं, जैसा कि देयर चाइल्ड्स मेडिकल वार्ड, इस तरफ बच्चों का मेडिकल वार्ड है, ना वुमेन का है ना मेल का है, यहाँ पे बच्चों का वार्ड है। सेकंड यूजेज ऑफ एपोस्ट्रॉफ इज यू कैन शॉर्टन द वर्ड थ्रू स्किप लॉन्ग फ्रेज। अगर आप फिक्रे को छोटा करना चाहते हैं, जैसे आई हैव, एग्जाम्पल में है आई हैव नॉट एनी स्पोर्ट्स बाइक, तो इसको मैं एग्जाम्पल में छोटा करूंगा, आई एपोस्ट्रॉफ वी ई नॉट एनी स्पोर्ट बाइक। पंक्चुएशन एफ, हाइपन, इट इज यूज इन कंपाउंड सेंटेंस मोस्टली। ये होता है कि जहाँ पे सेंटेंस कंपाउंड हो, मतलब एक से ज़्यादा मतलब उसके हिस्से हों, हिस्से हों, तो वहाँ पे यूज़ होता है। जैसा कि एग्जांपल, चाइना अ कंट्री विच हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इट हैज़ बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। दो चीज़ें हैं इसमें, ये कंपाउंड सेंटेंस है तो उसको अलग-अलग कर दिया गया है हाइपन से। डैश, इट इज यूज टू शो टाइम इंटरवल, पेज डिटेल, एज etc। जैसे कि एग्जांपल है, वो कहते हैं कि डैश इस्तेमाल होती है पेज इंटरवल वगैरह और एज वगैरह बताने के लिए। इन दिस कॉलेज ओनली दो स्टूडेंट कैन टेक क्लासेस होम एजेस आर 14 to 16। पंक्चुएशन कॉलन, इट इज यूज फॉर इन लिस्ट, अ लिस्ट, एन एग्जांपल एंड कोटेशन etc। वह कॉलन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपने कोटेशन देना है, कोई लिस्ट देनी है, कोई एग्जांपल देनी है, तो उसके आगे आप कॉलन लगाएंगे। जैसा कि नीचे एग्जांपल है, कादिर आज़म सेड, आई डू नॉट बिलीव इन थिंक द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। ये आपने जैसा कि पढ़ा कि मैं डिसीजन पे बिलीव नहीं करता, जो मैं ले लेता हूँ मैं उसको ठीक करता हूँ। सेमीकोलन, इट इज यूज फॉर मेक pause in sentence but this pause enough long then comma but shorten than to full stop। अब सेमीकोलन किस लिए इस्तेमाल होता है, सेमीकोलन तब इस्तेमाल होता है जब आप कॉमा से ज्यादा पॉज, मतलब थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं, और फुल स्टॉप से कम, तो वहां पे हम सेमीकोलन लिखते हैं। जैसे वी हैव लॉट ऑफ लॉस, हम बहुत से गलतियां रखते हैं, सो वी हैव लॉस्ट इट मैच, इसलिए हम मैच हार चुके हैं। पैरेंथेसिस, इट यूज फॉर गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू रीडर। वो पैरेंथेसिस में क्या होता है कि इसमें आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो किसी चीज़ के बारे में। देयर आर मैनी गेस्ट इन कॉलेज पार्टी, वो कहते हैं देयर आर मैनी गेस्ट, वहाँ भी मेहमान थे बहुत सारे, लेकिन कहाँ पे थे, इन कॉलेज पार्टी। ये जो ब्रेड्स होती है ये पैरेंथेसिस का सिंबल्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, brackets, it's similar to parentheses but mostly this use in official writing when writer want to add more information without broad change in original documents। वो कहता है ब्रैकेट्स कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे राइटर जो है ऑफिशियल राइटिंग में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, किसी में पॉइंट आउट कर रहा होता है, फिक्रे की जो हकीकी हालत है उसमें बिगाड़ पैदा किए बिना। एग्जाम्पल जैसे है, दैट ड्राइवर, वो ड्राइवर माई फादर, मेरा फादर था, who dropped me at college today, जिसने मुझे कॉलेज छोड़ा था। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली प्लीज़, और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो बने रहिए। स्टे ट्यून, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।